आज की सुबह में मैं फिर से आप सबको खुशामदीद कहता हूं. I want to greet each one of you in the name of Jesus Christ. For I know that God is here with us. His Spirit is here. He is present to talk to us. He is here to bless us. और मैं विश्वास करता हूं आज की इस सुबह में आसमान का खुदा मुझसे और आपसे बात करने के लिए तैयार है. God is ready to talk to us. And believe me, church, believe me, people of God, if you are ready, if your heart is ready, if your ears are ready, then I want to tell you, God is about to sow something really, really important in your life. अगर आपके कान तैयार हैं सुनने के लिए, आपका हृदय तैयार है ग्रहण करने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जीवित परमेश्वर कुछ बहुत अद्भुत आज आपके जीवन में बोने के लिए तैयार है. I have requested Brother Frank to read the scripture in Hindi for me on the microphone, and I will be sharing I will be reading English scriptures for you. So today the word that I want to share with you is, I'm going to talk about two things today. First, it says that the word of the Lord does not depend upon just words. Listen it very carefully, church. Word of the Lord does not depend upon on the words alone, but it is a demonstration of a spirit and power. परमेश्वर का वचन जो है वो केवल और केवल शब्दों पे आधारित नहीं है, पर परमेश्वर का वचन आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है. वो आत्मा और सामर्थ से चलता है. So, people of God, today I want you to open scripture for me, which is from 1 Corinthians chapter 2 and verse 4. 1 Corinthians chapter 2 and verse 4. In fact, I'm going to read it from verse 1 onwards. पहली आयत से आपके लिए पढ़ूंगा. 1 Corinthians chapter 2 and verse 1 onwards, and it says like this: And when I came to you, brethren, I did not come with superiority of speech or of wisdom, proclaiming to you the testimony of God. For I determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. I was with you in weakness and in fear and in much trembling, and my message and my preaching were not in persuasive words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and power, so that your faith would not rest on the wisdom of men, but on the power of God. Amen. Now I would request Brother Frank to read it for me from Hindi Bible. The same scripture, पहला कोरिन्थियों दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक. और हे भाइयों, जी, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया जी, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं. और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था. जी, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो. आमेन. इसमें एक बहुत खूबसूरत बात है. आपको मालूम है पौलुस ये जो खत लिख रहे हैं वो किसको लिख रहे हैं? दिस लेटर इट्स टू द चर्च ऑफ कोरिन्थियंस. ये कोरिन्थियों की कलीसिया को ये खत लिखा गया था. एंड लेट मी गिव यू ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट कोरिन्थियंस. मैं आपको बताऊंगा कोरिन्थियों के बारे में. सो कोरिन्थियों उस समय की एक बहुत रईस जगह हुआ करती थी. Corinthians was a trading center of that time. So many rich people, many royal people, all big shots people were there, all businessmen were there. It was a very good place, it was a very rich place. And Paul in his ministry, when he went to Corinthians, just tried to understand why Paul is saying, when I came to you, I did not come to you. It says in this way, chapter 2 and verse 1, and when I came to you, brethren, I did not come with superiority of speech. वो कहने लगा, इस तरीके से कहने लगा, जब मैं आप तुम्हारे पास आया भाइयों, तो मैं
बोलने की या प्रचार की या उसकी सामत के अनुसार नहीं आया कि कितना खूबसूरत मैं बोल लेता हूं. You know, it's never easy to start ministry about Jesus Christ in Corinthians. खास तौर से जहां सब बड़े लोग रहते हैं, जहां सारे बिजनेसमैन रहते हैं, जहां बहुत रुतबे वाले रहते हैं, जहां बहुत पैसे वाले रहते हैं. It is never easy to start a ministry on such place where all royal people are living, where business people are living. Because everybody have their own ideas. They are capable of doing lot of things. They do not lack in anything physically, worldly. So it was quite hard to preach the gospel to them. But then Paul said, I did not come to you in superiority of speech. कह रहा मैं ज्ञान की उत्तमता के कारण तुम्हारे पास नहीं आया. Then if we will move further, then it says, or of wisdom, proclaiming to you the testimony of God. For I determined to know nothing among you except Jesus Christ and his crucified. I was with you in weakness and in fear and in much trembling. आपको क्या लगता है why Paul is saying that I was there in weakness? आपको क्यों लगता है पौलुस कहने लगा मैं तुम्हारे बीच कमजोरी में था? आपको लगता है पॉल फिजिकली कमजोर थे? आपको लगता है पॉल की आदत थी घबराना? नहीं. आपको मालूम, पौलुस को मालूम था मैं जिस जगह प्रचार करने जा रहा हूं, मैं जिस जगह पे कलीसिया की बात करने जा रहा हूं, दिस प्लेस इज नॉट अ कॉमन प्लेस. दिस इज कोरिंथियंस. दिस इज अ ट्रेडिंग सेंटर. दिस इज अ मेजर सेंटर ऑफ ट्रेडिंग. यहां पे बड़े लोग हैं, यहां पे रईस लोग हैं, मुझे उनके रुतबे बड़े बड़े हैं, उनके रिसोर्सेज बड़े बड़े हैं, उनके पास चीजें बड़ी बड़ी हैं. पर आपको मालूम पौलुस कहने लगा when I came to you, I did not come to you with superiority of speech, and I did not, but I came to you in weakness, in fear and in much trembling. Now listen to me very carefully. Then he said, and my message and my preaching were not in persuasive words of wisdom. ज्ञान की लुभाने वाली बातों से नहीं था. आपको मालूम, मैंने इसका वर्ड का मतलब जानना चाहे. persuasive का मतलब होता है एक ऐसे शब्द या किसी तरीके से लोगों को कन्विंस करना, चाहे सच या झूठ बात से. So what Paul actually wanted to say that I did not come to you to convince you by persuasive words of wisdom. कुछ भी बोलकर मैं तुम्हें कन्विंस करने नहीं आया हूं. Church, I also want to tell you this morning I am also not standing over here just to use persuasive words to convince you people. I don't want to do that. I'm not here with that. But listen to me. But in demonstration of spirit and power. मैं भी आपके सामने आज ज्ञान की लुभाने वाली बातें लेकर नहीं आया हूं. मैं भी आज आपके सामने ज्ञान की ऐसी बातें लेकर नहीं आया हूं, चिकनी चुपड़ी बातें करने नहीं आया हूं जिसे आप सुने और उसके बाद आपको लगे ओ वाओ कितनी अच्छी बात भैया ने करी है, कितनी बढ़िया बात करी है, जिसमें कुछ सच हो कुछ झूठ हो. But I am standing here today with the word of God, and I want to tell you people of God, the word of God is 100% true. परमेश्वर का वचन 100 गुना 100 आने सच्चा वचन है. मैं अपने ज्ञान से आज आपको प्रचार नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है मेरा ज्ञान खत्म हो जाएगा. बट आई एम प्रीचिंग यू फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड आई नो दिस इज अनएंडिंग गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट. ये ना खत्म होने वाला गॉस्पेल है. तो उसने कहा मैं तुम्हारे पर भय के साथ आया, ज्ञान की उत्तम बातें करते हुए नहीं, लेकिन परमेश्वर का वो वचन तुम्हें सिखा रहा था जिसमें आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था. Church, I want to tell you something. The word of God, it may not be very sweet for you. It might not be very beautiful, decorated with lot of things, decorated with lot of lies for you. बहुत झूठ से सजा हुआ नहीं है. But I want to tell you, this word of God is true. And this word of God is demonstrated by the spirit and power. ये सच्चा वचन है और आत्मा और सामर्थ का प्रमाण देता है. Wherever you put this word, it works in the same way. उसी तरीके से ये वचन काम करता है, उसी रीति से काम करता है जिस रीति से परमेश्वर का ये वचन कहता है. एक दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, सुनिएगा.
उसके आगे कहने लगा 5वीं आयत में, सो दैट योर फेथ वुड नॉट रेस्ट ऑन द विजडम ऑफ मैन बट ऑन द पावर ऑफ गॉड। आमेन, हालेलुया। आपको मालूम है क्या कहने लगा? ताकि तुम्हारा विश्वास किसके ऊपर निर्धारित ना हो। किसके ऊपर कहने लगा? ताकि तुम्हारा विश्वास, भाई से हिंदी में फिर से पढ़ देगा 5वीं आयत को, हिंदी में फिर से पढ़ेगा 5वीं आयत को। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। आमेन, हालेलुया। कह रहा है ताकि तुम्हारा विश्वास किसके? मनुष्य के ज्ञान पे नहीं। मुझे नहीं मालूम आज मनुष्य का ज्ञान क्या बताता है। आई डोंट नो व्हाट द विजडम ऑफ मैन इज टॉकिंग टुडे। इट माइट बी टेलिंग यू लॉट ऑफ थिंग्स दैट ओके इतना चीज है, आपका ज्ञान बता रहा होगा या किसी मनुष्य का ज्ञान बता रहा होगा। देखो बहुत मुश्किल है कि तुम्हारे लिए कुछ हो पाए, देखो बहुत मुश्किल है कि तुम्हारे लिए रास्ते खुल पाए, देखो बहुत मुश्किल है कि कोई तुम्हारे लिए कुछ काम कर पाए। मे बी द विजडम ऑफ मैन इज टेलिंग यू राइट नाउ दैट इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव नाउ, इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट अ जॉब नाउ, इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर योर business to move on now. I don't know about the wisdom of man because my faith rests upon the power of God. It does not rest upon the wisdom of man. मेरा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर करता है। It does not matter for me कि दुनिया क्या कह रही है। It does not matter for me लोग क्या कह रहे हैं। It does not matter for me कि दुनिया समाज क्या कहता है। I want to tell you what my Lord says. I believe on that because everything that is happening in my life and the word that I have received from God, it works with the power of God. मनुष्यों का विजडम क्या कहता है मुझे नहीं मालूम। आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं चर्च, पीपल ऑफ गॉड, आई वांट टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। आपका विश्वास किसके ऊपर निर्धारित होता है? आपका विश्वास किसके ऊपर निर्धारित होता है? सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। हमारा विश्वास किस चीज पर आधारित है? आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू पीपल ऑफ गॉड, आपका विश्वास किस पे आधारित रहता है? डज योर फेथ रेस्ट ऑन द विजडम ऑफ मैन? कि किसी ने आपसे आके कह दिया कि देखो तुम्हारी परिस्थिति तो मुझे नहीं लगता है सही होगी, या आप ही का दिमाग आपको बता रहा है, एंड इवन इफ योर माइंड इज टेलिंग यू दैट देयर इज नथिंग गुड फॉर यू, does your faith rest upon this or your faith rest upon this thing that no matter what, maybe the circumstances are not good for me, maybe the things are not good for me, maybe I don't have a job, maybe my business is not working out, maybe the things are really tight for me, but I believe that through the power of God, God is going to establish everything for me. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मेरे लिए सब कुछ कर देगा। आज सवाल यही है कि आप किस चीज के ऊपर आपका विश्वास लाए करता है? आपका विश्वास किस चीज के ऊपर है? इज योर ट्रस्ट लाइंग एंड रेस्टिंग अपॉन द विजडम ऑफ मैन, wisdom of the world, when the people are calculating so many things that what is going to happen and what's not going to happen, or your wisdom or your faith says, I know everything is possible for me in the Lord who strengthens me. Things are going to be different if your faith will start resting upon the word of God. You know what does the Bible say in 1 Corinthians chapter 4 and 20? It says that the kingdom of God does not consist in words. This is what the Bible says. The kingdom of God does not consist in words, but in power. You know, if the Bible which I have, if it wouldn't have been manifesting in reality, if it wouldn't have been coming true in our real lives, then I want to tell you, I might not be reading it. Because then it's just like any other book. Then this kingdom is just like any other kingdom. But let me tell you, this is what the word says, that the kingdom of God does not lie in words, but in power. You know what is that power? That power is something when you think that everything is finished for me, there's nothing good has kept for me, then the power comes in and take the charge and says that no, everything is okay for you. We were singing this song, ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरे आत्मा से मैं जयवंत बनूं।
मुझे नहीं पता आपकी कितनी शक्ति आपके अंदर बाकी है, मुझे नहीं पता आपका कितना बल आपके अंदर बाकी है, पर मुझे एक चीज पता है, आसमान के खुदा की रूह हमेशा तैयार है कि अपनी सामत को मेरे और आपके जीवनों में दर्शा सके, दिखा सके, हमें आशीषित कर सके, हमें ब्लेस कर सके। सो दिस इज व्हाट द स्क्रिप्चर सेज। आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने बात की अब्राहम से, जब परमेश्वर ने बात करी सारा से और उसने कहा कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, बाइबल में लिखा है सारा ने अपने गर्भ की मरी हुई दशा में होने के बावजूद, मरी हुई दशा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? जब कुछ मर जाता है तो क्या उससे कोई होप रहती है? कोई होप नहीं होती। You know, if somebody died, you don't have any hope till the time if the person is breathing, if the heart is working, you can still try a lot of things. But let me tell you, when somebody dies, there's no hope. Everybody gives up. वो कहते हैं अब कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि अब मर गया है। पर आपको मालूम, बाइबल में लिखा है सारा ने अपने गर्भ की मरी हुई सी दशा के बावजूद उस खुदावन पे विश्वास रखा। She knew, like according to the wisdom of men, this might be impossible. This might sound like a joke in her life when the angels came and they said, when the Lord came and said that you will conceive a child. This might sound foolish according to the world. But hallelujah, she knew the power of God. She knew the power of God. That power of God can do anything in her life. The power of God can bring the life again in a womb. फिर से परमेश्वर का आत्मा उसके गर्भ में जिंदगी ला सकता है, उसके गर्भ में फिर से जान ला सकता है। सारी दुनिया, सारा समाज कह रहा है सारा तुम्हारे लिए चीजें खत्म हो गई, सारा तुम्हारे लिए टाइम खत्म हो गया, अब्राहम तुम्हारे लिए वक्त खत्म हो गया। But hallelujah, wisdom of men can fail, but the power of God can never fail you. परमेश्वर की आत्मा कभी आपको हरा नहीं सकती, परमेश्वर की आत्मा कभी आपको हरी हुई परिस्थिति में नहीं डालेगी, पर वो तो आपको जयवंत बनाएगी, वो तो आपको विश्वास पे ऊंचा बनाएगी। आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं चर्च, आपका विश्वास कहां रेस्ट करता है? Are you listening to the people around you and you're thinking, I don't know what is going to happen with my life. मेरी जिंदगी के संग क्या होगा? अपने आसपास के लोगों से सुनकर, परिस्थितियों से सुनकर कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपकी जिंदगी में क्या होगा? मुझे नहीं मालूम, but you know, if I talk about myself, अगर मैं अपने बारे में बात करूं, my hope lies in the power of God. आपको मालूम क्यों? क्योंकि एक दिन मनुष्य का ज्ञान खत्म हो जाएगा, एक दिन मनुष्य की रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे, एक दिन मनुष्य की चीजें खत्म हो जाएंगी, एक दिन आकाश मिट जाएगा, एक दिन जमीन टल जाएगी, एक दिन जितनी चीजें बनी है वो सब मिट जाएंगी, एक दिन मेरे रिश्तेदार मेरे साथ नहीं रहेंगे, एक दिन मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं रहेंगे। बट व्हाट इज गोइंग टू स्टे विथ मी इज द पावर ऑफ गॉड एंड इट इज गोइंग टू स्टे ऑलवेज विथ मी। Hallelujah, this power is going to hold you. ये सामत आपको संभाल के रखेगी, ये सामत आपको बना के रखेगी, ये सामत आपको जीवित रखेगी, और इसी सामत ने बहुतों को जीवित रखा है। We have lot of testimonies in the church, those who believed on the power of God and they are seeing the grace of God today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Where does your faith lie? आपका विश्वास कहां है? किस चीज पर है? किस जगह पर है? मुझे नहीं मालूम। मेरे लिए निकाल के कोई पढ़े भजन संहिता उसका 20 बाब उसकी 7वीं आयत, Psalms 20 and verse 7. It is a beautiful scripture which tells us about where our hope lies, where our trust lies, where our faith lies. And this is a scripture which might be written by the people of David, and it's a sort of, you know, some, like the people are praying and they are wishing something for their king, जो लड़ाई करने शायद जाने वाला है, जो शायद युद्ध पे जाने वाला है, शायद युद्ध की तैयारियां देश में चल रही हैं। आज भी देश में आप देखिए युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, आपके घरों में युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। एवरी डे वी आर फाइटिंग अ बैटल विद सर्कमस्टेंसेस। हर दिन हम एक युद्ध लड़ रहे हैं अपनी परिस्थितियों से, हर दिन हम युद्ध लड़ रहे हैं अपनी नौकरी से, हर दिन हम युद्ध लड़ रहे हैं अपनी आज की सिचुएशन से। वी आर इनटू अ वॉर राइट नाउ। हम अपने मन से युद्ध लड़ रहे हैं जो हमसे कह रहा है मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा
है एंड वी आर इनटू दिस वॉर। बट आपको मालूम है इसी तरीके से ये लोग भी, शायद हो सकता है इनका राजा दाऊद कहीं लड़ाई पे जाने वाला हो, कहीं लड़ाई की तैयारियां चल रही हो, पर एक खूबसूरत बात इन्होंने कही। वी विल लिसन इट फर्स्ट इन हिंदी। जी ब्रदर फ्रैंक, इफ यू कैन रीड इट इन हिंदी। 20 Psalms 20 and verse 7. Psalms 20 and verse 7. I'm reading it in English verse. It says like this: some boost in chariots and some in horses, but we will boost in the name of the Lord our God. इसको पढ़िएगा जी, हिंदी में क्या लिखा है? किसी को रथों का, लिखा है किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। आपको मालूम है युद्ध में रथ और घोड़े बहुत मायने रखते थे उस समाज में। Horses and chariots were one of the most important things in battle at that time. And this is how I think when the horses were being prepared, when the chariots were being prepared, जब इनको प्रिपेयर किया जा रहा था युद्ध के लिए, जब इनको तैयार करा जा रहा था युद्ध के लिए, जब इनको बनाया जा रहा था युद्ध के लिए, जब ये तैयारी हो रही होगी, नाल लगाई जा रही होगी, नई नाल लगाई जा रही होगी, उसके बाद सीट बैठाई जा रही होगी, हथियार चमकाए जा रहे होंगे, तलवारों को घिसा जा रहा होगा, when they were preparing the weapons, when they were preparing horses and chariots for the war, somebody got up and said, किसी को घोड़ों का भरोसा होगा और किसी को रथों का। Hallelujah. There might be few people, those who must be trusting horses and chariots, पर किसी ने उठ के कहा, पर हम तो अपने यहोवा का नाम लेंगे। We are going to trust upon the power of God. Some people might trust on economy. Some people might trust on things that are happening today. Some people might trust on the world that is going on and the situation going on today. वो उसके हिसाब से अपने जीवन का आंकलन करते हैं। But hallelujah, when I see my life, I don't see it according to the eyes of the world. जब मैं अपनी जिंदगी को देखता हूं तो दुनिया के नजरिए से नहीं देखता, मैं तो आसमान के खुदा की सामत से देखता हूं, जिसने आज तक मुझे जीवित रखा वो आगे भी मुझे जीवित रखेगा, वो मुझे बना के रखेगा। आमीन। अपने लिए बोलिए, अपने आप से बोलिए आज का ये, मेरे पीछे रिपीट करिएगा। कैन यू रिपीट दिस वर्स आफ्टर मी? बोलिए, किसी को घोड़ों का और किसी को रथों का भरोसा है। थोड़ा जोर से बोलेंगे। ये मालूम है जब when we say in such a quiet way or in a whisper, it shows that we don't have confidence. हमें कुछ हिचकिचाहट रहती है। Come on, say it louder. बोलिएगा जोर से, बोलिए, किसी को घोड़ों का और किसी को रथों का भरोसा होता है, पर हम अपने यहोवा का नाम लेंगे। When the people are preparing horses for the battle, when the people are preparing chariots for the battle, when people are doing lot of things to fight with this situation, what will the believer do? एक विश्वासी क्या करेगा इस समय? एक विश्वासी अपने घर में बैठकर, एक विश्वासी अपने कमरे में बैठकर, एक विश्वासी अकेले कोने में बैठकर आसमान के खुदा का नाम लेगा और कहेगा, मेरा घोड़ा और मेरी सामत और मेरा बल और मेरे लिए सब कुछ मेरा खुदावंद ही है। Nothing else matter for me. I'm going to take the name of my Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. एक बात बताऊं खुदा के लोगों, आपसे, आप में से और मुझे मिला के, हम में से हो सकता है, there are many of you those who must be listening this word of God. I believe many of you read the scripture. Amen. मैं क्या हाथ देख सकता हूं जिन जिन लोगों के जो लोग ये स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, जो लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, those who read Bible. Can you see your hand please? विश्वास से जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, आपने अगर बाइबल पढ़ी, आप अपना हाथ उठा सकते हैं। Thank you so much. Now I want to ask you another question. How many of us live the scripture? हम में से कितने लोग इस स्क्रिप्चर को जीते हैं? मैं आपसे पढ़ने की बात नहीं कर रहा। I'm not talking about reading the scripture. Every morning I read one chapter. Every evening I read 2 chapters. You know, I'm so much dedicated in reading the Bible. I'm not talking about how much you read the Bible. I'm talking about how much you live the Bible. There's a difference
अंतर है बाइबल पढ़ने में और बाइबल जीने में। अब आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक बात आपको बताऊं, व्हेन आई वाज स्मॉल, जब मैं छोटा था और मैं परमेश्वर में बढ़ रहा था, आई वाज इन माय यूथ, आई एम स्टिल इन माय यूथ, थैंक गॉड। बट जब और जवान था, जब 14-15 साल का था, तो मेरी एक ख्वाहिश हुआ करती थी। आई यूज्ड टू प्रे बिफोर स्लीपिंग एंड आई यूज्ड टू आस्क गॉड, परमेश्वर आज मुझे सपने में पूरी बाइबल दिखा देना। बाइबल मतलब पूरी बाइबल की स्टोरी, एंजल कैसे आया था, मरियम से कैसे मिला था, यीशु मसीह कैसे प्रचार कर रहे थे, यीशु मसीह ने कैसे चंगा करा। आपको मालूम है, मैं ये दुआ करने लगा और मैं रोज यही दुआ करके सोता था, जीसस आई वांट टू सी द बाइबल टुडे, आई वांट टू सी द स्क्रिप्चर टुडे। आज कोई ना कोई एक अध्याय, आपको मालूम है कभी नहीं आया, सच बता रहा हूं, कभी नहीं आया। मैं रोज प्रार्थना करता था, परमेश्वर ऐसा हो कि ये स्क्रिप्चर मेरे सपनों में आए, मैं देखूं स्वर्गदूत आया, कैसे मरियम के पास गया, तू तो दिखा सकता है। आपको मालूम है नहीं, आपको मालूम है कारण मालूम है क्यों? बिकॉज आई वॉज प्रेइंग, लॉर्ड, विथ माई आईज क्लोज्ड, आई वॉन्ट टू लिव द बाइबल, बट देन लॉर्ड टोल्ड मी, आई विल नॉट मेक यू टू लिव दिस बाइबल with your eyes closed. I will make you to live this Bible with your eyes open. मैं तुम्हें इस कलाम को दिखाऊंगा जितना कुछ लिखा है, पर तुम्हारी आंखें खोलकर, तुम्हारी आंखें खुली रखकर, ताकि तुम उसे याद रखो। सपने तो भूल जाते हैं, सपने तो चले जाते हैं, बट एवरीथिंग दैट वी सी विद दीज आईज, जो हम इससे देखते हैं और इनसे सुनते हैं, वो जल्दी नहीं भूलते। आपको बताना चाहता हूं, आपने स्क्रिप्चर बहुत पढ़ा होगा, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रीडिंग द स्क्रिप्चर टुडे, आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग द स्क्रिप्चर टुडे। And there's something which I want to tell you. There's something which I want to tell you. You cannot live the scripture if everything is okay for you. आप इस स्क्रिप्चर को जी नहीं सकते हैं अगर सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा है। Amen? आपको बताओ क्यों? कैसे? इस स्क्रिप्चर में किसी की भी स्टोरी उठा ली, इस स्क्रिप्चर में किसी की भी स्टोरी उठा लीजिएगा, किसी की स्टोरी और किसी के हालात अच्छे नहीं थे। जितनों के बारे में लिखा है वो सब बड़ी परिस्थितियों से होके, सब कठिनाई से होके, सब दिक्कतों से होकर निकले। You won't find anybody living a very luxurious and very comfortable life in this scripture. So it means if you want to live the scripture, if you want to live the word of God, I am sorry, but then you have to go through everything that happened in the Bible with his people. आपको भी उन्हीं चीजों से होके गुजरना होगा जिसमें से परमेश्वर के लोग होके गए हैं, क्योंकि अगर आपको बाइबल जीनी है तो बाइबल इसी तरीके से जी जाएगी। अब सवाल पूछता हूं एक दूसरा, सब लोग ध्यान से सुनेगा। अब आपके लिए मेरे पास एक सवाल है। अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग स्क्रिप्चर जीते हैं? How many of you live the Bible? How many of you live the Bible? Every person who's watching me here today, आप क्या इस वाली बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप इस वाली बात को समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूं? अगर आप कंफर्टेबली हैं, you are not living the scripture, you are enjoying your life. But if you are going through the hard times, you will live the scripture. And God has made me to live this scripture. We went through a lot of hard times in our life. हम बहुत सी कई चीजों से होके गए हैं, बहुत सी बीमारी से होके गए हैं, बहुत सी परिस्थितियों से होके गए हैं। You know what? God made me to live the scripture with my eyes wide open. परमेश्वर ने मुझे मेरी जिंदगी में कलाम जीना दिखाया है, कैसे कलाम को जिया जाता है, इन्हीं खुली आंखों से। मैं तो दुआ करता था आंख बंद करके कि सपने में आ जाए, पर आसमान के खुदा ने मुझे खुली आंखों से दिखाया है। If things are not good for you, you can live the scripture. Hallelujah. I'm not just talking about reading the scripture. सिर्फ रीडिंग की बात नहीं कर रहा हूं। सुबह एक बाप पढ़ लिया, अरे अगर आपके संग परिस्थिति अच्छी नहीं है, it's time to live the scripture. बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं। I don't want to take it a very long. बहुत ज्यादा नहीं करना चाहता because ये ऑनलाइन सर्विस है। Many of you must be watching. आप अपना समय निकाल के इसे देख रहे होंगे। ओपन करने की जरूरत नहीं, पर आप विश्वास करें, वहां पे लिखा है, and you can, if you want, you can open at your home also. Luke 8 chapter 20-25. Luke 8 chapter 20-25, it talks about when one day Jesus asked his disciples to go to the other side of lake.
And as soon as they went in the boat and they just left the shore and they moved forward, the Bible says that they faced the wind and they were about to die. एक बड़ी प्रचंड आंधी आई जिसने लहरें उठाई, नौ डूबने पर थी, सब कुछ खत्म हो रहा था, सब चीज होती जा रही। तो यीशु मसीह, the Bible says that Jesus was sleeping at the back of the boat. यीशु मसीह आप नौ के पिछले भाग में सो रहे थे। This is what the Bible tells us. यीशु मसीह पिछले भाग में सो रहे थे। आपको मालूम है जब नौ जाके चेले कहने लगे, अरे यीशु मसीह हम नाश हुए जाते हैं, तुझे फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह खड़े हुए, यीशु मसीह ने शांत करा दिया तूफान को, सब कुछ थम गया, सब कुछ आराम से हो गया। तब यीशु मसीह ने एक सवाल पूछा और यह सवाल बड़ा अहम था। कैन यू रीड दिस क्वेश्चन इन वर्स 25? जीसस आस्क्ड द क्वेश्चन इन वर्स 25। और उसने उनसे कहा, या यीशु ने चेलों से कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? बस भाई, where was your faith? Listen to it very carefully. Where was your faith? You know, their faith was resting upon the wisdom of men. आप मुझसे पूछेंगे आप कैसी बात कर रहे हैं, या विजडम ऑफ मैन कहां से है? आपको बताऊं क्यों? क्योंकि जब लहरें आनी चालू हुई होंगी तो इन्हीं चेलों में से कुछ चेले ऐसे भी थे जो पहले क्या काम करते थे? What were they? फिशरमैन। इनको समुंदर का, इनको पानी का, इनको इस तालाब का बहुत अच्छा अंदाजा था। आपको मालूम है जब इन्होंने देखा होगा लहरें उठ रही हैं, हवा चल रही है, अब नहीं बच सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारा विजडम कह रहा है, हमारी अकल कह रहे। इनमें से हो सकता है कोई खड़ा होकर कहने लगा, अरे हमसे ना बेहतर कौन जानता है, हम बता रहे। किसी ने हो सकता है बोला भी हो कि नहीं फिक्र ना करो, यीशु मसीह साथ में है। पर उसने कहा नहीं, मुझसे ज्यादा कौन जानता है, मैंने तो यह काम किया है। विजडम ऑफ मैन। Jesus asked him a question. Where was your faith? I asked you this question. Where is your faith? Is your faith lying on the wisdom of men? Those who see the situations and they estimate everything what is going to happen in your life? Or your faith lies upon the power of God which has ability to change anything at any time? क्या आपका विश्वास मनुष्य के ज्ञान पे आधारित है जो आपकी सिचुएशन को देख के बता देते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में क्या होने जा रहा है, या आपका ज्ञान परमेश्वर की सामर्थ पे आधारित है जो आपसे ये कहता है बेटा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी अगर मेरी सामर्थ कह देगी कि तू जी उठे तो तू दोबारा जी उठेगा। Oh people of God, I am talking about everything that you are facing today. There might be problems going on in your family right now. There might be trouble in your businesses right now. There might be a lot of things that are not good in your life right now. But I want to tell you, yes, if you are going to calculate with the wisdom of man, you might get disappointed. But if you are going to see it through the power of God, hallelujah, you won't find anything to disappoint you. अगर आपके जीवन में हो सकता है बहुत कुछ अच्छा ना चल रहा हो, पर अगर आप इसे मनुष्य के नजरिए से देखेंगे तो हाँ परिस्थिति खराब है, पर अगर आप इसे खुदा के नजरिए से देखेंगे उसकी सामत से, तो आप ये कहेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता अभी क्या है, क्योंकि एक लम्हे में मेरा खुदावन सब कुछ बदल सकता है। आमेन। सिर्फ एक बात कह के खत्म करूंगा, एक आखिरी वर्स। इफ ब्रदर यू कैन रीड फॉर मी प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 and verse 5, नीति वचन उसका 3 बाप। इट्स अ फेमस वर्स, नीति वचन 3 बाप। आज आपसे एक चीज अलग रखने के लिए कहने जा रहा हूं। I'm going to ask you to keep something away from you today. उसका 3 बाप और उसकी 5वीं आयत को मेरे लिए पहले हिंदी में पढ़ दें। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। आमेन, हालेलुया। लिखा है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर। इसका मतलब भरोसा कहां लाए करना चाहिए? समझ पर नहीं। मुझे क्या समझ आ रहा है मेरी परिस्थिति कितनी खराब हो रही है, मुझे क्या समझ आ रहा है मेरे दिन कितने खराब हो रहे हैं, मुझे क्या समझ आ रहा है, मेरी समझ का सहारा मुझे नहीं लेना है। इंग्लिश में लिखा है ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, नॉट इवन अ सिंगल, नॉट इवन अ टाइनी पोर्शन ऑफ योर हार्ट शुड कीप अवे फ्रॉम ट्रस्टिंग द लॉर्ड। छोटा सा हिस्सा भी परमेश्वर पे विश्वास करने से अलग ना रह जाए। लिखा है एंड डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग
because your understanding comes through the wisdom. And let me tell you, I am not talking about the wisdom of men according to Paul. I am talking about the power of God. आपकी जिंदगी कहां है, किस हालात से गुजर रही है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता. बट आई वॉन्ट टू इनकरेज यू पीपल ऑफ गॉड टुडे कि आपका विश्वास मनुष्य के ज्ञान पे नहीं निर्धारित होना चाहिए, पर परमेश्वर की सामत पे. आमेन, आमेन, हालेलुया. आई बिलीव दिस स्क्रिप्चर हैज स्पोकन टू यू. हर एक सुनने वाले से खुदा के इस कलाम ने बात करी है, आपसे बात करी होगी, आपको कुछ समझाया होगा. जब पौलुस इतने बड़ी जगह पर एक चर्च स्टार्ट करने के लिए, एक ऐसी जगह जहां इजी नहीं था, जब जा सकता है लेकिन यह कह सकता है कि मुझे मालूम है कि मैं अपने ज्ञान से नहीं आया हूं, पर मैं परमेश्वर की सामत को लेकर आया हूं साथ में, तो आप समझ जाइए कि आपका खुदावंद आपके लिए कितना कुछ कर सकता है. यू नीड टू ट्रस्ट द पावर ऑफ गॉड. ट्रस्ट द पावर ऑफ गॉड. ट्रस्ट द स्पिरिट ऑफ गॉड. ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरे आत्मा से मैं जयवंत बनूं. ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरे आत्मा से मैं जयवंत बनूं. चर्च, इट्स अ गुड टाइम टू लिव द स्क्रिप्चर. वाओ, सारपत की विधवा को देख के बड़ा अच्छा लगता है ना कलाम में. उस औरत को देख के बड़ा अच्छा लगता है ना, जिसके बच्चों को लेने कर्ज वाले आ गए थे पर वो बच गई. पौलुस को देख के बड़ा अच्छा लगता है ना. दाऊद को देख के बड़ा अच्छा लगता है ना कलाम में. डैनियल को देख के बड़ा अच्छा लगता है. शद्रक मेशक अबेदनगो को देख के बड़ा अच्छा लगता है ना कलाम में. बहुत अच्छा लगता है. पर ये समय है कि आप खाली इन्हें देखें ना, लेकिन इनकी तरह जिंदगी जिए. जब आग में खड़ा होना पड़े, तूफानों में स्थिर रहना पड़े, जब मुश्किलातों का सामना करना पड़े, तो इसी स्क्रिप्चर को जैसे मैंने शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में पूरा होते देखा था, अपने जीवन में भी देखूंगा. आई वॉन्ट टू प्रे यू पीपल ऑफ गॉड. आपके लिए दुआ करना चाहता हूं. डू यू वॉन्ट टू प्रे विथ मी? आइए आप मेरे पीछे पीछे इस बात को रिपीट करिएगा. रिपीट दिस प्रेयर आफ्टर मी. थैंक यू लॉर्ड. प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके सम्मुख आया हूं और प्रभु मैं अपने आप को आपके आगे समर्पित कर रहा हूं. अपनी सोच को आपके आगे समर्पित कर रहा हूं. अपने विचार को आपके आगे समर्पित कर रहा हूं. अब प्रभु, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, मनुष्य की बुद्धि के ऊपर नहीं, पर तेरी सामत पे भरोसा रखूंगा. और मैं जानता हूं अब ये बाइबल जीने का समय है. अब मैं तेरे कलाम को जीऊंगा. जिन परिस्थिति में से तेरे दूसरे सेवक होके गुजरे, मैं भी गुजरूंगा और मैं भी उनकी तरह जयवंत बनूंगा तेरी आत्मा के द्वारा, जैसे वो बने. मुझे हिम्मत दे और मेरी सोच को आज ही से बदल दीजिए. मेरा विश्वास आपकी सामत पर निर्भर हो, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन.